Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today we are going to talk about the CA breast in pregnancy. Okay, so the first point is that pregnancy, the population of pregnant women comprises 1% of the breast CA. Okay, 1%, and the incidence is 1 per 3,000 pregnancies. It's an important point. So we know already that it is the most common CA in the United Kingdom, and that is why it is the most commonly diagnosed CA in pregnancy. हाउएवर हमें लगता है कि शायद ये प्रेगनेंसी के साथ ये ज़्यादा इसका प्रोग्नोसिस ख़राब हो जाता है, और क्या प्रेगनेंसी शायद थोड़ा इम्यूनिटी को इफ़ेक्ट करती है तो सीए फैलता होगा, ऐसा कुछ नहीं होता. Pregnancy does not worsen the prognosis. It's a very important concept that you need to clear, that pregnant होने या ना होने का इसके prognosis का से कोई ताल्लुक नहीं है. वो अलग बात है कि इसकी स्टेज बताएगी कि इसका क्या prognosis है. अब मसला कहाँ आता है? मसला ये आता है that it's asymptomatic, ठीक है, especially in pregnancy, because patients might think that it's just a lump, and lump changes occur in pregnancy, तो वो इसका diagnosis delay हो जाता है by 5 to 7 months. और इस वजह से pregnancy presents twice with advanced disease because it remains undiagnosed, because there's a delay in diagnosis. So ये वजह. However, prognosis का pregnant होने से कोई ताल्लुक नहीं है. अब आपका एल्गोरिदम जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क. From here, the prognosis is starting. That if a patient has a breast lump or discharge, देखिए lumps बन जाते हैं प्रेगनेंसी में जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से, लेकिन अगर 7 days का आपने पेशेंट को बताना है सस्पिशियस लम्प है, 7 days से ऊपर हो गया, इट्स नॉट रिजॉल्विंग, देन यू आर गोइंग टू रेफर टू द स्पेशलिस्ट यूनिट. ठीक है, आपने स्पेशलिस्ट यूनिट के पास रेफर कर देना है. रेफर टू द डायग्नोस्टिक ब्रेस्ट क्लिनिक फॉर अर्जेंट असेसमेंट. सो दिस इज फ्रॉम वेयर द एल्गोरिथम स्टार्ट्स. वेरी इंपॉर्टेंट that you have to refer for urgent assessment to a specialist unit, not to the GP. GP might receive her when she comes with this complaint. GP should ask that 1 week ho gaya, is it more than 1 week? Then you are going to refer to the specialist unit. And the pathway is the FDS 28-day time frame. According to this 28-day time frame, this is the faster diagnosing standard, that from the point of referral, the patient should receive treatment should receive a diagnosis within 28 days. मतलब आपने उसको let's say GP ने उसको देखा 1 week से ऊपर हो गया. इस कॉन्सेप्ट को प्लीज़ समझें. ठीक है, उसने कहा ये 1 week से ऊपर का लंप है तो ये सस्पिशियस है, मैं इसको रेफ़र कर रहा हूँ. कोई ऐसा रूल नहीं है कि पहले आपने अल्ट्रासाउंड करना है, कोई ऐसा रूल नहीं है पहले आपने बायोप्सी करनी, आपने उसे डायरेक्ट रेफर कर देना. कोई इमेजिंग कुछ पॉइंट्स में ना देखें, जैसे हमारे पास ओवेरियन मास्टर्स इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन है, उसमें आपने CT स्कैन करना है. ठीक है, पहले ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भेजने से पहले. लेकिन इसमें आपने ऐसा कुछ नहीं करना. 7 days से ऊपर का लंप है आया कि बस आपने उसे डायरेक्ट स्पेशलिस्ट यूनिट पे रेफर कर देना है. और अब वो जो स्पेशलिस्ट यूनिट है, इट शुड सी द पेशेंट विद इन 28 days, और 28 days में रूल आउट करना है या फिर रूल इन करना है कि विद इन 28 days फ्रॉम द डे ऑफ प्रेजेंटेशन, यहाँ से लेके यहाँ तक 28 days में उसको डायग्नोसिस मिल जाना चाहिए कि उसको CA है या नहीं है. ट्रीटमेंट की बात अभी नहीं, अभी है दैट शी शुड बी डायग्नोज. दैट इज अ टाइम फ्रेम ऑफ 4 weeks. Okay, now next step, that in the specialist, once you have referred, then they're going to do ultrasound, and ultrasound targeted biopsy is usually done. FNAC is not done. This is a very important point, that in pregnancy, for investigating a breast lump, you don't do an FNAC, you go for an ultrasound guided targeted tissue biopsy. Okay, now if there is a blocked milk duct lump, okay, there are many blocked milk duct lumps, and they basically resolve in 7 days. तो अगर उसको भी 7 days से ऊपर हो गया, उसको भी आपने रेफर करना है. तो ये 7 days से ऊपर चाहे किसी भी किस्म का लंप है, 1 हफ्ते से ऊपर हो गया, it's not resolving, refer them to a specialist unit. And then from that point of, from the day of referring the patient, within 28 days time period, the patient should receive a diagnosis. ठीक हो गया. Now मेमोग्राफी का क्या इसमें कोई रोल है? नहीं, डायग्नोसिस में नहीं है. अगर नॉन CA है, नॉन CA का एक्सटेंट बताएगी. ओके, अच्छा, अब इससे कितनी रेडिएशन एक्सपोजर होता है, हमारे पास टारगेट कितना होता है? एक्सेप्टेबल फीटल एक्सपोजर आपको पता ना चाहिए. इन जनरल इट्स नॉट रिलेटेड टू दिस गाइडलाइन, दैट एक्सेप्टेबल फीटल एक्सपोजर शुड बी 50
मिलीग्रे, लेस देन दिस, ओके। सो 0.001 to 0.01 तक हो तो मैमोग्राफी सेफ होती है। आपने कब करनी, इंडिकेशन, इस एल्गोरिदम में कहीं पे भी मैमोग्राफी नहीं है, ओके। Image guided core biopsy is how we're gonna do the biopsy. Very important. That is the ultrasound guided one, okay. Then the next point is ये जो रेफरल के points हैं ये आपको पता होना चाहिए। स्पेसिफिकली इस गाइड में मेंशन है, डॉक्टर प्रियाता लाल का जो यूट्यूब पे लेक्चर है वहाँ पर उन्होंने पढ़ाया दैट यू हैव द 28-day fast diagnosing pathway, okay, standard, and then you have the 62-day referral to treatment standard and 31-day डिसीजन टू ट्रीट टू ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड। हर चीज़ का उन्होंने एक लैंडमार्क दिया हुआ है। मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो मेरे मैक्सिमम कि विद इन 28 days व्हेन अर्जेंटली रेफर्ड, रूल आउट और रिसीव डायग्नोसिस इन 28 days। रेफ़र जिस दिन किया जीपी ने टू स्पेशलिस्ट यूनिट, उस दिन से लेके 28 days तक उस पेशेंट को पता चल जाना चाहिए कि उसे क्या है, ओके। देन वी हैव द 62-day रेफरल टू ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड। दिस इज़ दैट ये जो रेफरल था, इनिशियल रेफरल यहाँ से, इस इनिशियल रेफरल से लेके नेक्स्ट 62 days तक उसको ट्रीटमेंट मिल जाना चाहिए। 28 days तक उसे डायग्नोसिस मिल जाना चाहिए, 62 days तक उसे ट्रीटमेंट मिल जाना चाहिए। एंड ट्रीटमेंट जिस दिन डिसाइड हो गया कि अब ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, उसके 31 days के अंदर अंदर उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज डेज 28 days, 62 days, 31 days, यू शुड नो एंड प्लीज रिवाइज देम। दीज आर द बेसिक्स, ओके। नाउ आपने जब भी सर्जरी करनी है, प्री ऑप एक्सिलरी स्टेजिंग करेंगे। अच्छा, प्री ऑप एक्सिलरी उसके